Hello students, welcome back to our channel. In this particular lecture, we will cover a new topic that is precision agriculture and remote sensing in agriculture. So इस lecture में हम लोग cover करने वाले हैं what is precision agriculture, what are the components of precision agriculture, what is the use of remote sensing in agriculture. Modern farming technique के बारे में आपको बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, right? Precision agriculture basically it is an agriculture technology which uses GIS, GPS, remote sensing and variable rate technology to use different resources in efficient manner and to produce maximum from limited resources, and it also considered environmental safety and environmental sustainability. So basically what are the components of precision agriculture? Remote sensing, GIS, GPS and variable rate technology. These are the basic components of precision agriculture if I'll say. What is remote sensing? Remote sensing means अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम ए डिस्टेंस स्टडी करना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो वी यूज रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी. रिमोट सेंसिंग इटसेल्फ रिमोट एंड सेंसिंग. सो रिमोटली वी आर सेंसिंग any object or any place. What is GIS? GIS means Geographic Information System. So in GIS what we do, different layers of information are being prepared using GIS technology where resources are being what is the land resource available there, what is the water resource available there, what are the resources available in a particular locality. That thing we can get from GIS map to fit in any model or to follow up precision agriculture. Then what is GPS? GPS means Global Positioning System. GPS tells us about a particular locality or about a particular place or land, its coordinate, its latitude, longitude, and in case of altitude also it tells us about the altitude. So why we need GPS? GPS हमको ये बताता है कि कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन में, प्रिसाइज लोकेशन में हमको जो है हमारा रिसोर्स यूज़ करना है, राइट? हमको ये पता चल गया कि दिस प्लेस इज डेफिशिएंट इन फॉस्फोरस और मे बी एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, और दिस पर्टिकुलर लोकेशन हैज सर्टेन सॉइल माइक्रोब्स which is affecting crops. So if we know that particular location there is a problem by GPS mapping, then we can only apply our precision agriculture tools and techniques to prevent that, to prevent the nutrient blizzard or to prevent the disease infestation या फिर water shortage या फिर drought situation. So these are the precision agriculture technology, and we use this technology to produce more and to use our resources efficiently, right? So let's dive into today's topic. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो we are uploading so many lectures in our channel, conceptual lectures, mock tests, different quizzes we are organizing. You can join our Telegram group also. There we are sharing our PDFs, different quizzes we are organizing there, and you can ask your doubts also there. So join our Telegram group also, that is Agriculture Q&A, you can see here. Question answer discussion करने के पहले आपको ये बता देता हूँ कि question and answers are not important. The important thing is you have to gather as much as information you can. You have to gather as many as concepts you can grab. So if you are clarified on different concepts, if you know what is this, what is that, then you can only answer in different competitive exam. Because in competitive exam, you cannot find direct question and answer. You can find different applied questions in your NET exam, in your any agri competitive exam. Maximum questions are based on principles and concepts, right? So try to grasp all the concepts what I am talking, right? And whatever questions will come from precision agriculture and remote sensing section will be coming around these questions what I am going to discuss here, right? So be attentive, and if you face any doubt then ask me in the comment section, or you can post a question on our Telegram group also. So let's dive into today's topic. Let's begin with today's session, that is self-assessment test for precision agriculture and use of remote sensing in agriculture. So let's begin with the first question of the session. Which among the following is a component of precision agriculture? Which among the following is a component of precision agriculture? Options are GIS, GPS, remote sensing, all of the above. The right answer is all of the above. What is GIS? Geographic Information System. Okay, GIS is Geographic Information System. GPS is Global Positioning System. RS is Remote Sensing. Okay, so all these are component of precision agriculture. Other components like variable rate technology applicator, then decision support system, again fertigation system, again these are different component of precision agriculture. What is precision agriculture?
Precision agriculture is any agriculture practice that is where site-specific management of different site-specific resource management are being done, considering the special variability of land to maximize crop production and minimize cost of production with least environmental damage. Next question. Which among the following is involved in real-time nitrogen management in field? Which among the following is involved in real-time nitrogen management in field? Options are SPAD, Green Seeker, LCC, all of the above. The right answer is all of the above. All these components, like all these methods like SPAD, Green Seeker, leaf color chart, these are used for nitrogen management, real-time nitrogen management, right? So SPAD क्या करता है? This is a handheld instrument. What it does, it actually ये क्या करता है? Greenness of crop measure करता है. Greenness due to chlorophyll content. Nitrogen is a major component of chlorophyll. So अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होगा तो क्लोरोफिल का जो है येलो हो जाएगा, वो जो लीफ है वो टुवर्ड्स येलो आ जाएगा, वो परफेक्ट ग्रीन नहीं रहेगा. तो ये ग्रीननेस का जो इंटेंसिटी हो दैट इज मेजर्ड बाय स्पैड. ग्रीन सीकर एनडीवीआई प्रिंसिपल यूज करके, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, ये प्रिंसिपल यूज करके ग्रीन सीकर इज बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट प्रिसिशन एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स. एलसीसी आपको पता है लीफ कलर चार्ट, ये मैनुअल लीफ कलर चार्ट लेके हम फुल्ली एक्सपांडेड लीफ जो होता है वहां पे उसको मैच करेंगे. अगर वो स्ट्रिप का जो लीफ कलर चार्ट का स्ट्रिप रहता है उसका 3 या 4 से अगर कम आया या फिर ज्यादा लाइट आया, उसका लीफ का जो कलर है येलो या फिर लाइट ग्रीन ऐसे आया, तो फिर हमको 25 to 30 kg अराउंड नाइट्रोजन उस केस में पर हेक्टर अप्लाई करना पड़ेगा. ऑल दिस आर इन्वॉल्व इन रियल टाइम नाइट्रोजन मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The science and art of obtaining information about an object, area or phenomena through the analysis of data acquired by a device that is not in direct contact with the subject under evaluation is called. So options are GIS, remote sensing, GPS, VRT. The right answer is remote sensing. Remote sensing क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में या फिर कोई भी प्लेस है उसके बारे में हमको जानना है, एंड फ्रॉम डिस्टेंस, हम डायरेक्ट उसका कॉन्टैक्ट में ना आके उसके बारे में अगर जानना चाहेंगे तो that method is known as, what method we use, that is known as remote sensing. Remote means from a distance and sensing means to know about something, right? So this is remote sensing. Next question. The sharp contrast in reflectance behavior between red and near infrared portion of electromagnetic spectrum with respect to leaf reflectance is called. The sharp contrast in reflectance behavior between red and near infrared portion of electromagnetic spectrum with reference to leaf reflectance is called. Options are red drop, red edge, red effect, vegetation index. So इसको कहा जाता है red edge. इसका मतलब मैं मीनिंग समझा देता हूँ. कोई भी क्रॉप आप देख रहे हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्टेंस एक होता है, राइट? रिफ्लेक्टेंस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर जब फॉल होता है तो उसमें से कुछ बैंड, सपोज व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड्स, व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड्स, जैसे कि यूवी बैंड हो गया, देन विजिबल बैंड हो गया, देन इंफ्रारेड बैंड हो गया. दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड्स. ओके, सो व्हेन इट फॉल ऑन ए वेजिटेशन और एनी ऑब्जेक्ट that reflect some electromagnetic waves, they are being absorbed by the plant or object and some are reflect by the object. So ये जो रिफ्लेक्टेंस है, जैसे अगर ब्लू लाइट या फिर जैसे रेड लाइट फॉल हो रहा है लीफ के ऊपर, वो ऑब्जर्व हो जाता है and that is used for photosynthesis. But green light it reflects more. Okay, when we see a plant it seems to be green because it reflects green light. Then जब हम रेड के बाद नियर इंफ्रारेड रेंज में आता है तो फिर वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है. नियर इंफ्रारेड, अगर ये रेड बैंड हो गया, दिस इज नियर इंफ्रारेड कंडीशन में ये डायरेक्टली मतलब रिफ्लेक्ट ही होता है. तो दिस मूवमेंट फ्रॉम रेड टू नियर इंफ्रारेड, दिस इज कॉल्ड एज रेड एज. ओके, दिस इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टेंस ऑफ लीफ. ओके, रेड ड्रॉप क्या होता है? रेड ड्रॉप यानी अगर कोई भी प्लांट को हम ज्यादा देर तक रेड लाइट सप्लाई करते हैं उसका फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा, दैट इज नोन एज रेड ड्रॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following is not a dominant factor controlling the leaf reflectance? Which among the following is not a dominant factor controlling the leaf reflectance? Options are stomatal opening, leaf pigments, cell structure, water content. The right answer is stomatal opening. Okay, so stomatal opening is not a dominant factor controlling the leaf reflectance, but other factors like leaf pigments, cell structure of the leaf,
then water content of the leaf, these are major contributing factor for the leaf reflectance. So leaf reflectance चाहिए क्यों, रिफ्लेक्टेंस स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि हमको अगर वेजिटेशन आइडेंटिफाई करना है, या फिर हमको अगर डिजीज हुआ है कि नहीं, या फिर प्लांट का जो मॉइस्चर स्टेटस अगर जानना है, तब हमको लीफ रिफ्लेक्टेंस से ही पता चलता है. सो लीफ रिफ्लेक्टेंस इज इंपॉर्टेंट for our remote sensing studies or for our precision agriculture. Next question. The principle of green seeker is based on. The principle of green seeker is based on. Options are canopy temperature depression, stress degree day, NDVI, LAI. The right answer is NDVI. What is NDVI? Normalized difference vegetation index. Okay, normalized difference vegetation index. NDVI is normalized difference vegetation index. कैनोपी टेम्परेचर डिप्रेशन क्या होता है? आप अगर मेरा प्रीवियस क्लासेस फॉलो कर रहे हो तब आपको पता होगा, जब ट्रांसपिरेशन लेस हो जाता है, अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन आ जाता है तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है. ट्रांसपिरेशन नहीं होने से क्या होता है, जो कैनोपी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है. सो जब भी वाटर स्ट्रेस कंडीशन आता है सॉइल में, तब प्लांट का भी कैनोपी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, राइट? क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन होता है तो फिर जो वाटर मॉइस्चर इन माइक्रो क्लाइमेट ऑफ प्लांट फॉलिएज दैट इंक्रीजेस. सो व्हेन दैट इवापोरेट्स, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग. सो व्हेन दैट ट्रांसपायर्ड वाटर इवापोरेट्स, देन ये प्रोवाइड एक करता है कि एक कूलिंग क्लाइमेट प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट फॉलिएज माइक्रो क्लाइमेट. सो कैनोपी टेम्परेचर डिप्रेशन यानी एक हेल्दी वेजिटेशन का कितना टेम्परेचर रहना चाहिए कैनोपी में, एंड एक स्ट्रेस प्लांट का कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, दैट इज नोन एज कैनोपी टेम्परेचर डिप्रेशन. अगर कैनोपी टेम्परेचर डिप्रेशन होता है तो फिर हमको इंटरप्रेट करना है कि प्लांट इज अंडर स्ट्रेस. देन व्हाट इज स्ट्रेस डिग्री डे? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ कैनोपी माइनस टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट? सो स्ट्रेस डिग्री डे भी उसी प्रिंसिपल में फोकस करता है कि प्लांट हेल्दी है कि नहीं, या फिर प्लांट का जो वाटर स्टेटस है that is good enough or not. If the plant water status is good, then canopy temperature will be less than atmospheric temperature. If the plant is in water stress condition, then the canopy temperature will be higher than atmospheric temperature, and stress degree day will be higher. So if stress degree day will be higher, then we can assume that the plant is under water stress, right? Then NDVI, that is normalized difference vegetation index. This is based on the reflectance, okay, this is based on reflectance from the leaf. Okay, LAI क्या होता है? लीफ एरिया इंडेक्स. इसके बारे में सेपरेट लेक्चर हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ NDVI रेंजेस. NDVI का जो वैल्यू है दैट रेंजेस फ्रॉम, राइट आंसर इज -1 to +1. NDVI का फॉर्मूला क्या है? NDVI नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स इज इक्वल टू NIR, मतलब नियर इंफ्रारेड माइनस R रेड डिवाइडेड बाय NIR प्लस R. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस मीन्स कितना NIR नियर इंफ्रारेड रेडिएशन, कितना वो बैंड कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है फ्रॉम प्लांट, देन रेड बैंड कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, देन दिस इज अगेन उसका कॉम्बिनेशन. सो हमको पता है कि अगर वेजिटेशन होता है तो वहां पे रेड लाइट ऑब्जर्व होता है, क्योंकि क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है रेड लाइट, एंड नियर इंफ्रारेड लाइट हम जैसे देखें कि वो रेड एज होता है, तो नियर इंफ्रारेड लाइट रिफ्लेक्ट होता है. जब नियर इंफ्रारेड लाइट मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होता है एंड रेड लाइट मैक्सिमम ऑब्जर्व होता है, तो NDVI वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी पॉजिटिव की तरफ रहेगा, राइट? जैसे कि यहाँ पे नियर इंफ्रारेड माइनस रेड है फॉर्मूला में, तो नियर इंफ्रारेड अगर ज्यादा होगा एंड रेड कम होगा तो फिर ये पॉजिटिव होगा. अगर नियर इंफ्रारेड कम हुआ एंड रेड ज्यादा हो रहा है तो फिर क्या होगा? ये टुवर्ड्स नेगेटिव आएगा. तो इस केस में क्या होगा? हमको ये पता चलेगा कि प्लांट इज इन स्ट्रेस और प्लांट इज इन डिजीज्ड कंडीशन. सो वी हैव टू टेक द करेक्टिव मेजर्स, राइट? सो द वैल्यू रेंजेस फ्रॉम -1 to +1. जो स्पैड मीटर आप देखे थे, हम डिस्कस किए थे, रियल टाइम नाइट्रोजन मैनेजमेंट के लिए स्पैड मीटर यूज होते हैं, उसका जो रेंज है 0 to 99.9 है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर असेसिंग स्ट्रेस डिग्री डे व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड? ऑप्शंस आर साइक्रोमीटर, स्पैड मीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, इर्गा. सो स्ट्रेस डिग्री डे मैं आपको बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में
कि स्ट्रेस डिग्री डे अगर हमको प्लांट का जो वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट हमको जानने के लिए हम स्ट्रेस डिग्री डे एक कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेस डिग्री डे, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए भी स्ट्रेस डिग्री डे यूज होता है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस डिग्री डे? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैनोपी टेम्परेचर माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। सो अगर दिस स्ट्रेस डिग्री डे इज हायर, दैट मीन्स द प्लांट इज अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन। सो ये कैनोपी टेम्परेचर हम मेजर कैसे करेंगे? दैट इज मेजर्ड बाय इंफ्रारेड थर्मोमीटर। सो द राइट आंसर हियर विल बी इंफ्रारेड थर्मोमीटर, राइट। साइक्रोमीटर क्या मेजर करता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ प्लांट, ओके। देन स्पैडमीटर, दिस मेजर्स द ग्रीननेस ऑफ द प्लांट. IRGA measures photosynthetic rate and different types of other parameters IRGA is measuring. What is IRGA? IRGA is infrared gas analyzer, right? Next question. Computerized mapping system to acquire, store and display information in layers of data which can be combined with models and decision support system to construct a powerful management tool is known as. Options are GIS, GPS, remote sensing, variable rate technology. So the right answer is GIS. GIS means Geographic Information System. इसमें क्या होता है? कोई भी प्लेस में हम जितना भी रिसोर्सेस है हमारे पास अवेलेबल, उसको GIS मैप क्या करता है? एक लेयर वाइज उसको मैप करता है, लेयर वाइज प्लेस करता है, राइट। उस वहाँ पे लैंड यूनिट कितना है, वहाँ पे डिफरेंट रिसोर्स वाटर यूनिट क्या है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट फर्टिलिटी क्या है, ये सारे स्टेटस वो लेयर वाइज एक ग्रिड मैप प्रोड्यूस करता है GIS। उसको लेके हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में डाल के उसको मॉडलिंग कर सकते हैं एंड वी कैन डेवलप ए पावरफुल मैनेजमेंट टूल टू बी यूज्ड इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, राइट। सो दैट इज GIS. नेक्स्ट क्वेश्चन. GPS receivers take signal from GPS satellites and use dash to calculate users exact location. GPS receivers क्या करते हैं? GPS सैटेलाइट जो हमारा अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, सो उनमें से जो सिग्नल उसको रिसीव करके क्या करता है ताकि हम यूजर का एग्जैक्ट लोकेशन, हम कोई भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सके। सो द राइट आंसर इज triangulation. This is a method which is done after receiving the GPS signals to know exact location of a place or anybody. So GPS का काम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी प्लेस कितना ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड एंड कितना लैटिट्यूड यानी अर्थ का जो इक्वेटोरियल लाइन से कितना नॉर्थ एंड कितना साउथ है, दैट इज लैटिट्यूड, एंड प्राइम मेरिडियन से कितना ईस्ट और कितना वेस्ट में है, दैट इज लॉन्गिट्यूड। सो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को जानने के लिए हम GPS यूज करते हैं। अगेन ऑल्टीट्यूड भी हम GPS के माध्यम से असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. एटलीस्ट हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द 3D पोजीशन ऑफ ए लोकेशन? कोई भी लोकेशन का 3D पोजीशनिंग जानने के लिए 3D पोजीशनिंग होता क्या है? उसका लैटिट्यूड, उसका लॉन्गिट्यूड एंड उसका ऑल्टीट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स मैं बताया कि जो इक्वेटोरियल लाइन है उसमें उससे कितना नॉर्थ और कितना साउथ में है कोई भी पोजीशन। लॉन्गिट्यूड क्या है? प्राइम मेरिडियन से कितना ईस्ट और कितना वेस्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट। और ऑल्टीट्यूड क्या है? मीन सी लेवल से कितना ऊपर है। सपोज ये ग्लोब हो गया, राइट। इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड लेक्चर है हमारा चैनल पे। सो दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन मीन 0 डिग्री। सो इसी लाइन से कितना वो नॉर्थ में है, राइट, कितना नॉर्थ में है, या फिर हाँ, दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड, ओके। एंड दिस इज द प्राइम मेरिडियन मूविंग 0 डिग्री जो है वो लंदन डे के पास होता है। सो इसमें से इससे कितना ईस्ट और कितना वेस्ट में, दैट इज लॉन्गिट्यूड। एंड सपोज कोई भी मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल से कितना ऊपर है, दैट इज ऑल्टीट्यूड। सो इसको जानने के लिए कितना सैटेलाइट मिनिमम चाहिए होगा, यानी 3D लोकेशन जानने के लिए, 3D पोजीशन ऑफ ए लोकेशन जानने के लिए हमको मिनिमम 4 नंबर्स ऑफ सैटेलाइट्स चाहिए, राइट। 3D पोजीशन के लिए हमको 4 नंबर्स ऑफ सैटेलाइट्स चाहिए होता है। 2D पोजीशन के लिए 3 नंबर्स ऑफ सैटेलाइट में हो जाएगा, राइट। 2D पोजीशन यानी ओनली लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन. द न्यूट्रिएंट एक्सपोर्ट फर्टिलाइजर डिसीजन सपोर्ट टूल वाज डेवलप्ड बाय. द न्यूट्रिएंट एक्सपोर्ट फर्टिलाइजर डिसीजन सपोर्ट टूल वाज डेवलप्ड बाय. ऑप्शंस आर IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IPNI, इंटरनेशनल प्लांट न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, US Department of Agriculture. So which among the following organization developed nutrient export fertilizer decision support?
It was developed by IPNI, International Plant Nutrition Institute. This nutrient export fertilizer decision support is an easy to use interactive computer based decision tool that can rapidly provide balanced nutrition recommendation for rice, wheat and maize for individual farmers field. So this is being used since quite a long time, and the results are also prominent. So next question, which among the following is not a tool for precision farming? इनमें से कौन सी is not a tool for precision farming? Options are remote sensing, fertigation, VRT applicator, biological weed control. So the right answer is biological weed control. This is not a precision technology. This is an ecological technique to control weed biologically. For a sustainable agriculture, it may be an option, but for precision farming, this is not an option. Precision farming यानी हम जो resources है उसको एक पर्टिकुलर फील्ड में या फिर पर्टिकुलर लोकेशन में उसका वेरिएबिलिटी स्टडी करके कितना क्वांटिटी कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन में प्रोवाइड करना है रिसोर्स, दैट इज प्रिसिजन फार्मिंग. सो व्हाट आर द tools we have already discussed, like remote sensing, GIS, GPS, fertigation technique, VRT applicator यानी variable rate technology applicator. These are the tools of precision farming. Next question, which among the following is not a constraint for using laser assisted land leveling? High cost soil compaction, need of skilled labor or operator, not suitable for irregular small sized field. The right answer is soil compaction is not a problem for using laser assisted land leveling. Laser assisted leveler involves the use of laser transmitted that emits a rapidly rotating beam parallel to the required field plane, which is picked up by a sensor receiving unit fitted to the tractor towards the scraper unit. So क्या होता है लेजर असिस्टेड लैंड लेवलर में एक लेजर गाइडेड इंस्ट्रूमेंट रहता है दैट मेजर्स द फील्ड लेवलिंग एंड दैट ट्रांसमिट्स दैट डेटा टू द स्क्रैपर यूनिट and that actually level the field at micro level the field, right? So laser assisted land leveling क्या करता है, it increases 3 to 5% more cultivable area, it saves irrigation water. of course अगर हम land level नहीं रहेगा तो फिर irrigation water जो है वो that will be lost in runoff. It also improves crop yield, nutrient and water use efficiency also increased, weed control efficiency is also increased in laser assisted land leveling. Next question, which among the following beam of electromagnetic radiation is mostly used in remote sensing? remote sensing में इनमें से कौन सी electromagnetic radiation is mostly used? that is infrared radiation. okay, infrared radiation that is mostly used in remote sensing. Next question, which among the following sensors are used for identifying various crops and weeds in a field? एक particular field में क्रॉप्स कौन सी क्रॉप है या फिर वीड कौन सी वीड्स है एंड क्रॉप एंड वीड के अंदर जो डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए, उसको असेस करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए व्हिच ऑफ द सेंसर्स आर बीइंग यूज्ड? ऑप्शंस आर मल्टीस्पेक्ट्रल, हाइपरस्पेक्ट्रल, पैनक्रोमेटिक, ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज हाइपरस्पेक्ट्रल. मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर में क्या होता है, जो भी सैटेलाइट हम भेजते हैं एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में जो भी सैटेलाइट हम सेंड कर रहे हैं उसमें रहता क्या है, उसमें रहता है सेंसर. ओके, सेंसर वो वार करते हैं डिफरेंट बैंड विड्थ में, राइट? सो मल्टी स्पेक्ट्रल में अराउंड 5 to 7 सिलेक्टेड बैंड्स रहते हैं, लेकिन हाइपर स्पेक्ट्रल में क्या रहते हैं, हाइपर स्पेक्ट्रल में मोर देन 200, अराउंड 100 to 200 या फिर मोर देन 200 बैंड्स रहते हैं. बैंड्स यानी डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ उसका डिफरेंट वेवलेंथ कैप्चर करने का जो कैपेसिटी है, राइट? हाइपर स्पेक्ट्रल जो सेंसर्स है उसमें डिफरेंट मोर देन 200 बैंड्स को वो सेंस कर सकते हैं. सो इट इज easier for hyperspectral sensors to identify different crop reflectance, different crops or crops and weeds based on their reflectance. Okay, next question, the GPS system developed and used by India is, the GPS system developed and used by India is, options are GLONASS, Navstar, Galileo, NAVIC. The right answer is NAVIC. NAVIC जो है ये इंडिया का जीपीएस सिस्टम है. ओके, देन GLONASS इज द जीपीएस सिस्टम ऑफ रशिया. रशिया का जीपीएस सिस्टम का नाम है GLONASS. नावस्टार जो है ये यूएसए का जीपीएस सिस्टम है. गैलीलियो जो है ये यूरोपियन यूनियन का जीपीएस सिस्टम है. सो इंडिया का
जो जीपीएस सिस्टम है दैट इज NAVIC. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव रिमोट सेंसिंग. इनमें से कौन सी इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव रिमोट सेंसिंग? ऑप्शंस आर radar, lidar, radiometer, all of the above. The right answer is radiometer. Okay, रिमोट सेंसिंग दो टाइप का होता है, एक पैसिव रिमोट सेंसिंग, अनदर इज एक्टिव रिमोट सेंसिंग. ओके, पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, जो सोलर रेडिएशन है that falls on different object and that reflected radiation from that object that is being captured by the instrument, the sensor. So that is passive remote sensing. Here the instrument has not its इंस्ट्रूमेंट का अपना कुछ रेडिएशन सोर्स नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंट अपना कुछ एनर्जी यूज नहीं करता है. लेकिन एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट खुद रेडिएशन एमिट करता है एंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को कैप्चर करता है. जैसे कि रडार हो गया, लीडर हो गया, रडार में साउंड एमिट करता है, लीडर में लाइट एमिट करता है एंड उसको असेस करता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एग्रीकल्चर यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग? व्हाट इज द एग्रीकल्चरल यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग? ऑप्शंस आर एल नीनो मॉनिटरिंग, drought assessment, land uses and conservation, all of the above. The right answer is all of the above. For all this purpose, remote sensing is being used in agriculture. So El Nino क्या है? El Nino, this is weather phenomena that affects the monsoon in India. That affects if there will be drought or if there will be flood in India. Then drought assessment कर सकते हैं, कितना एरिया में drought हो रहा है, कितना एरिया में कितना crop stand है, that is being assessed by using remote sensing. लैंड यूसेज एंड कंजर्वेशन, कौन सी लैंड कैसे यूज हो रहा है या फिर कहाँ पे वेस्ट लैंड कैसे डेवलप हो रहा है. सो दिस इज बीइंग असेस्ड बाय नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर. ओके, ऑल दीज आर द यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? इनमें से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कौन सी इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक? ऑप्शंस आर सर्कुलर ऑर्बिट एंड 36,000 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड में ये प्लेस होता है. आइडियल फॉर कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. दिस सैटेलाइट्स आर सन सिंक्रोनस, मूव्स वेस्ट टू ईस्ट. द राइट आंसर इज दिस सैटेलाइट्स आर सन सिंक्रोनस. दिस इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. सो सन सिंक्रोनस कौन सी सैटेलाइट है? जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं, पोलर सैटेलाइट्स आर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट. ये क्या होते हैं, ये कोई भी दिन के कोई भी एक टाइम पीरियड में कोई भी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर होते हैं ये सैटेलाइट, राइट. दे मूव थ्रू पोल. ओके, जो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट होता है एंड दीज आर मूव्ड इन एलिप्टिकल पाथ अराउंड द अर्थ एंड दे एक्चुअली, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट क्या होते हैं, एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं एंड देयर मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू इक्वेटर एंड दे पास थ्रू पोल and they are sun synchronous. That's why they are known as sun synchronous. But geostationary satellite and yes, polar orbiting satellite, they are placed in the lower atmosphere, but geosynchronous satellite they orbit around 36,000 kilometers altitude in circular orbit. Okay, polar orbiting satellite जो होता है that rotate around the earth in elliptical manner, but the geosynchronous satellite they rotate around the earth in circular orbit. The geosynchronous satellite, they are ideal for communication and broadcasting like INSAT series. They move from west to east. So students, this was all about precision agriculture and use of remote sensing in agriculture. जितना भी हो सका, जितना मैक्सिमम कवरेज कर पाता मैं उतना ट्राई किया कवरेज करने के लिए. आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट में इन्फॉर्म किया, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड किया थ्रू दिस लेक्चर. एंड अगर आपको डिटेल में एक प्रिसिशन एग्रीकल्चर के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है, यू कैन गो एंड वॉच दैट लेक्चर ऑल्सो, सो दैट यू कैन बी बेटर क्लैरिफाइड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, राइट. आपको अगर कोई भी लेक्चर पे फॉर दिस लेक्चर और मे बी एनी लेक्चर, एनी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर ऑन आवर चैनल, आपको कोई भी लेक्चर में अगर कुछ भी डाउट है देन यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो, आप कोई भी डाउट फेस कर रहे हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन आस्क इन आवर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर हमारा लेक्चर, हमारा एफर्ट अच्छा लगता है, देन do subscribe to our channel and join our telegram group so that you will never miss a lecture or you will never miss a mock test, right? So yeah, see you in the next lecture. Till then, bye bye, have a great day.